a very brief introduction and basic principles to audit and assurance. And moving on with that, we'll also have a brief introduction on the fundamental ethical principles that govern the professional accountants. Okay. So this is something very interesting. This is something which we all can relate to. Since we all are accountants, we're accountancy students, so all of us can relate to these things actually. और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ ऑडियंस का कॉम्पोजिशन मुझे इतना आइडिया नहीं है, but as far as I know, I might be having some people in my audience who are PIPFA members, who qualified members. Some of them might be PIPFA students. तो आज के सेशन को कुछ इस तरह रखेंगे कि किसी के लिए भी बोरिंग ना हो, रेपिटेशन ना हो, और ऐसा भी ना हो कि आपके सरों के ऊपर से जाए. So it's going to be a mix. We're going to discuss some things on very basic note so that every one of you can actually understand. And we are going to touch upon some advanced areas as well in such a way that those people who are the members of PIPFA and who are with us here today, they may not find it very boring. Because mashallah आप सब experienced लोग हैं, qualified लोग हैं, academic knowledge, subject knowledge, technical knowledge आप सबके पास मौजूद है. But let's look at these things in a very different way today, in an interesting way today, in a way that we all can actually understand the concept behind it and the background of why these things are and how these things are. तो सेशन को लेकर चलते हैं. कोशिश मैं करूंगा इस 1 घंटे में, सवा घंटे के टाइम में, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम मुझे देना है. तो मैं मेरा जो नेट स्पीकिंग टाइम होगा दैट विल नॉट बी मोर देन एन आवर, क्योंकि एग्जैक्टली फिर 1 घंटे के बाद द फ्लोर विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस सो दैट वी हैव इनफ टाइम फॉर गुड क्वेश्चंस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम. मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे और करूंगा, एक्सेप्ट फॉर द होस्ट एंड द को होस्ट, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स अगर अपना कैमरा ऑफ रखेंगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम होगा सेशन में और हम एक सेशन स्मूथली रन कर पाएंगे. जब आप सवाल पूछिएगा मुझसे तो आप अपना माइक भी अनम्यूट कीजिएगा और आप अपना कैमरा भी ऑन कीजिएगा. मैं आपको देखूंगा भी और आपसे बात भी करूंगा इंशाल्लाह. But for the time being, while the session is going on, it is requested, highly recommended for all the participants to switch off their cameras except for the hosts and the co-host because they need to be there in the session all the time. Okay जी, so moving on, थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ें, थोड़ा सा आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं. एजेंडा देकर आप परेशान मत होइएगा. अच्छा, I'll be bilingual, okay? Because I want you to be comfortable with me. I will not use only English because some of you might have the language barrier. So let's be bilingual. जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत होगी मैं इंग्लिश बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बैठ जाए, और जहाँ पर मुझे लगेगा आपको समझाने की ज़रूरत है तो मैं उर्दू में बात करूँगा ताकि बात उस तरह भी आपके समझ में आ जाए. So let's be bilingual and let's speak in a language we are all comfortable with speaking and listening both. Okay. तो थोड़ा सा ये आज का एजेंडा है. नीड फॉर ऑडिट, ऑडिट का जो सब्जेक्ट है, ऑडिट की जो एक्टिविटी है उसकी जरूरत क्या है, डेफिनेशन क्या है, बाय बुक डेफिनेशन क्या है, एक फ्रेज है रिपोर्टेड, एक फ्रेज है रिक्वायर्ड, उनके दरमियान फर्क क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ, एफआरएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं. There is one phrase, do, get and give. What is that? We're going to look at that as well. Audit procedures क्या होते हैं, audit evidence क्या होता है, audit report क्या होती है, और कुछ important dates हैं during the audit जिनको हमें follow करना होता है. So this is a very brief agenda. It doesn't appear to be brief. आप कह रहे होंगे इतनी सारी बातें हम 1 घंटे में कैसे पढ़ेंगे, तो आप बेफिक्र रहे, हम पढ़ने के लिए यहाँ पर नहीं आए. I'm specifically addressing to the PIPFA students. Don't take it as your academic class, right? It's a session. And I want it to be a very interactive session, so enjoy it. इसको आप क्लास की तरह नहीं पढ़ना है, अपने आप ने इसको एंजॉय करना है. आपने कुछ लिखना नहीं है, कुछ आपने सिलेबस फॉलो नहीं करना, कुछ आपने यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी. आपने सिर्फ मुझे सुनना है और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है. And I'm sure that this session would help you out in your academics as well as in your practical life, inshallah. तो एजेंडा आइटम्स बहुत सारे, बट हम बहुत क्विकली इनको ओवरव्यू करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपके बात समझ में आए. अच्छा, तो हमारा पहला एजेंडा आइटम, नीड फॉर ऑडिट. चले मैं स्लाइड को पहले हटाता हूँ, पहले मैं कुछ आपसे बात करता हूँ. ऑडिट की जरूरत क्या है, ऑडिट की जरूरत क्या पेश आई, क्यों पेश आई, ये सब्जेक्ट क्यों वजूद में आया, इस सब्जेक्ट को क्यों बनाया गया, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें इस बात को समझने की जरूरत है. देखें, मैं आपको मिसाल दूं. एक सोल प्रोप्राइटर है, लेट्स से एक परचून की दुकान है, ठीक है. उसका एक ही ओनर है जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर. आप सब इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं. वो हर रोज सुबह आता है, अपनी दुकान खोलता है और बैठ जाता है, चीजें बेचने लग जाता है.
साथ साथ वो चीजें खरीद भी रहा होता है सप्लायर से, और उसी के साथ साथ कस्टमर्स को चीजें बेच भी रहा होता है। तो जो कस्टमर्स उससे चीजें खरीद रहे होते हैं वो उसको पैसे दे रहे होते हैं, वो एक ड्रॉर उसने बनाई होती है उसमें डाल रहा होता है, और जो सप्लायर से वो सामान खरीद रहा होता है उसी ड्रॉर में से वो पे भी कर रहा होता है। और जब दिन खत्म होता है तो उस ड्रॉर में उसके पास जो बचता है वो ये समझता है कि ये मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि जो आया मैंने इसके अंदर डाला, जो गया वो इसी में से गया, जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट अपनी दिहाड़ी समझकर अपने जेब में डालता है और अपने घर चलता बनता है। उसको किसी को जवाब दे नहीं होना, उससे कोई ये नहीं पूछता कि भाई आपने कितना कमाया, उससे ये कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे कमाया, क्या आप इससे बेहतर कमा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है, वो अपने उस बिजनेस का, उस छोटे मोटे बिजनेस का खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, बिजनेस भी उसका है, चलाता भी वो खुद है। तो फिर उससे किसी की सवाल करने की कोई हिम्मत नहीं होगी। और उससे अगर कोई सवाल करता भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ और उससे सवाल करता हूँ कि भाई जरा आप मुझे बताइए कि आप कितना कमाते हैं, और आप मुझे बताइए कि आप अपनी दुकान अच्छे से चला रहे हैं या नहीं। सो यू नो व्हाट वुड ही रिस्पॉन्ड, ही वुड से भाई आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, मेरा बिजनेस है, मैं ओन करता हूं और मैं ही इसको चलाता हूं, जब चीज भी मेरी है और चलाता भी मैं हूं, तो मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं, मुझे किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं होना। अगर मैं अच्छी तरह चलाता हूं तो मेरा फायदा है, बुरी तरह चलाता हूं तो मेरा नुकसान है, आप जाके अपने काम से काम रखिए। बात बिल्कुल ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, प्रॉब्लम का रीजन हमें समझना है। प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है वही बिजनेस का मैनेजर भी है, जिसकी चीज है चलाता भी वही है, मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन मसला कहाँ आता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज में। मसला आता है उन कंपनीज में जहां पर ओनरशिप किसी और के हाथ में है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, चीज है किसी और की, चलाता कोई और है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप अपनी गाड़ी किसी को चलाने को दें, तो चीज तो आपकी है लेकिन चला कोई और रहा है। और जब आप किसी को अपनी गाड़ी चलाने को देते हैं और वो फिर आपको वापस आके आपकी गाड़ी वापस करता है, तो आप एक चेक जरूर करते हैं, चाहे वो आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, आप चेक जरूर करते हैं कि उसने गाड़ी में कोई खराबी तो पैदा नहीं करी, उसने गाड़ी कहीं मार तो नहीं दी, उसने गाड़ी को अच्छी तरह चलाया या नहीं चलाया। ये देखने की आपको जरूरत क्यों पड़ती है, ये देखने की आपको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गाड़ी आपकी थी, चलाई किसी और ने है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाएंगे तो चीज आपकी, आप अच्छी तरह चलाएंगे, लेकिन जिसने गाड़ी चलाई है, जिसको आपने गाड़ी चलाने को दी, चीज उसकी नहीं थी। तो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स अप, जो आप पहली बुलेट में देख पाएंगे, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में खला आ जाए, जहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो जाए, जहां पे चीज किसी और की हो और चलाए कोई और। एंड दिस इज द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के। कंपनी तो ओनर्स की होती है, मतलब शेयर होल्डर्स की होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स उस कंपनी को चलाते नहीं है, वो उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोग हायर करते हैं कि जो उस कंपनी को चलाने के एक्सपर्ट होते हैं, और वो जो लोग हायर करते हैं उनको कहा जाता है मैनेजमेंट। तो अब शेयर होल्डर्स ने अपनी चीज यानी अपनी कंपनी जिसको वो ओन करते हैं, शेयर होल्डर्स ने वो सौंप दी किसी और के हाथ में, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। चीज शेयर होल्डर्स की है, कंपनी शेयर होल्डर्स की है, ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उसको चला कोई और रहा है, उसको चलाने वाले लोग मैनेजमेंट हैं। तो जब ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होगी तो फिर जरूरत पड़ेगी एक तीसरी पार्टी की, जरूरत पड़ेगी एक ऐसे शख्स की जो कहलाता है ऑडिटर, और जो किसका एजेंट होता है, जो बेसिकली एजेंट होता है शेयर होल्डर्स का। यानी शेयर होल्डर्स कहते हैं यार हमारी कंपनी थी, हमने चलाने के लिए मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, अब मैनेजमेंट इस कंपनी को हमारे लिए चलाए और अच्छी तरह चलाए, हमारे इंटरेस्ट में चलाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम एक और बंदा हायर करें जो हमारी मैनेजमेंट पर नजर रखे। यानी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स ने अपनी कंपनी को मैनेजमेंट के हाथों में सौंपा और उनसे कहा कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी को चलाइए, बहुत सारे पैसे कमाइए, और उसमें से कंपनी के खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाए वो हमारे दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, या प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने अपने एकेडमिक्स में पढ़ा है। तो अब शेयर होल्डर्स ने अपनी कंपनी किसी और के हाथों में सौंप तो दी, लेकिन दिमाग में शक है, शुबा है, डाउट है कि यार ये लोग कंपनी को, मेरी कंपनी को अच्छी तरह चलाएंगे या नहीं, ये मेरे इंटरेस्ट में चलाएंगे या नहीं,
ऐसा तो नहीं कि अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, मेरे इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे। तो अपनी उस मैनेजमेंट पर नजर रखने के लिए, उनके काम पर नजर रखने के लिए शेयर होल्डर्स ने एक और शख्स अपॉइंट किया, इसको कहा जाता है ऑडिटर्स। तब शेयर होल्डर्स ऑडिटर से कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर मेरी कंपनी में जाइए और मेरी मैनेजमेंट के काम को इवैल्यूएट करें और फिर मुझे वापस आकर बताइए कि सब ठीक है या नहीं है और मेरी कंपनी सही से चलाई जा रही है या नहीं। सो बेसिकली ऑडिट है क्या, या अश्योरेंस। ऑडिट के लिए एक बेहतर वर्ड हम यूज करते हैं अश्योरेंस। ऑडिट और अश्योरेंस के वर्ड्स फिलहाल आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आप ऑडिट कहें, अश्योरेंस कहें, एक ही बात है। इट्स बेसिकली अ 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप होती है। एक मैनेजमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जो कंपनी को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, ऑडिटर्स जो कि प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट के काम पर नजर रखेंगे, और शेयर होल्डर्स वो जो उस कंपनी के ओनर्स हैं, जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, यानी जिनके लिए सारा काम किया जा रहा है, जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो किसी भी ऑडिट में, किसी भी एश्योरेंस में 3 चीजों का होना जरूरी है, व्हिच इज मैनेजमेंट, ऑडिटर्स and the shareholders, and that is what the need for audit is। यही ऑडिट की जरूरत है। कि ऑडिट क्यों चाहिए? ऑडिट इसलिए चाहिए, कभी भी कोई आपसे जिंदगी में कोई भी सवाल पूछे, कभी ऑडिट की जरूरत क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे चीजों को चेक करना होता है, आप ये नहीं कहेंगे चीजों को वेरीफाई करना होता है, क्योंकि ये तो ऑडिट का तरीका है। ऑडिट की जरूरत क्या है, ऑडिट की नीड क्या है, ऑडिट की एक्टिविटी स्टैब्लिश क्यों हुई है? इसलिए स्टैब्लिश हुई है बिकॉज ओनरशिप हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ये बुक की डेफिनेशन है जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हम पढ़ाते हैं। It definition of audit क्या है? It's an independent examination of financial statements to give an opinion whether the financial statements give a true and fair view or the financial statements are free from material misstatement। अब ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं, बाद में आप इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त हमें इसको समझना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपने क्लियर करना है। बाकी सारे आपके मराहिल बहुत आसानी के साथ तय होते चले जाएंगे। सो ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी मैनेजमेंट। किसके लिए बनाएगी? शेयर होल्डर्स के लिए। जब शेयर होल्डर्स ने अपनी कंपनी को मैनेजमेंट के हाथों में सौंप दिया कि आप इसको चलाइए, तो फिर साल के आखिर में शेयर होल्डर्स उसी मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पूरे साल का हिसाब किताब हमें प्रोवाइड करें, पूरे साल का हिसाब किताब हमें प्रोवाइड करें। तो जो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को वो हिसाब किताब प्रोवाइड करेगी वो कहलाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। अब जब शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो उनको हो सकता है उस पर यकीन आए, हो सकता है यकीन ना आए। तो वो अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए चाहते हैं कि हमारा जो ऑडिटर है वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख ले कि मैनेजमेंट ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कुछ लिखा है, जो कुछ रिपोर्ट किया है, जो कुछ बताया है, वो ठीक है या नहीं। अगर ऑडिटर कहता है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मैनेजमेंट ने आपके लिए, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए बनाए, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई गलती नहीं है, कोई मसला नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तब जाके शेयर होल्डर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है चीजों को कि कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। चलाएगा कौन? मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट पूरे साल कंपनी को चलाएगी तो साल के आखिर में मैनेजमेंट उस कंपनी का हिसाब किताब प्रिपेयर करेगी, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और किसके लिए प्रिपेयर करेगी? कंपनी के ओनर्स के लिए प्रिपेयर करेगी, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए प्रिपेयर करेगी। और शेयर होल्डर्स उस पर यकीन कर पाए, उस पर रिलाय कर पाए, इसलिए जरूरी है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक थर्ड पार्टी वेरीफाई करे, एग्जामिन करे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अगर वो थर्ड पार्टी ग्रीन सिग्नल देगी तभी शेयर होल्डर्स उस पर रिलाय करेंगे। और वो थर्ड पार्टी है? ऑडिटर है। सो ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, गैर जानिबदार एग्जामिनेशन है। यानी ऑडिटर की जो कैपेसिटी है वो बड़ा एक न्यूट्रल आदमी है, वो किसी को फेवर नहीं करेगा, वो शेयर होल्डर्स को भी फेवर नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट को भी फेवर नहीं करेगा, बल्कि वो वही बात करेगा, वही काम करेगा जो उसको करना चाहिए, जो उसके गैर जानिबदार होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए, अनबायस्ड होने के लिए जरूरी है।
तो इसीलिए तो उसके काम पे रिलाई किया जाता है ना। जब आप ऑडिटर्स बनेंगे इंशाल्लाह तो आपकी इसीलिए इज्जत की जाती है, आपको इसीलिए अहमियत दी जाती है, क्योंकि आप गैर जानिबदार होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप अनबायस्ड होते हैं, आप वही करते हैं जो आपको करना चाहिए, आप किसी की ख्वाहिश पर काम नहीं करते। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्यों है ये एग्जामिनेशन? टू गिव एन ओपिनियन, यानी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसकी एग्जामिन करता है ताकि उन पर ओपिनियन दे और शेयर होल्डर्स को बताया कि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या सोचता है। जैसा ऑडिटर कहेगा वैसे ही शेयर होल्डर्स अमल करेगा, शेयर होल्डर्स वैसे ही अमल करेंगे उसके ऊपर। So it's an independent examination of financial statements to give an opinion whether the financial statements give a true and fair view or the financial statements are free from material misstatement. फिलहाल ये दोनों बातें आपके लिए एक ही हैं कि या तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद उन पर ओपिनियन देगा, they give a true and fair view, और या ये ओपिनियन देगा कि दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिलहाल ये दोनों बातें आपके लिए एक सी ही हैं। तो बेसिकली ये सारी जंग है रिपोर्टेड वर्सेस रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या? रिक्वायर्ड वो कि जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने हैं, और रिपोर्टेड वो कि जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। तो बेसिकली ऑडिटर ने यही चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया है वो इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर जो रिक्वायरमेंट थी वैसा ही मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया है तो फिर ऑडिटर का ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अच्छा होगा। और अगर मैनेजमेंट ने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिपोर्ट नहीं किया है तो उसका ओपिनियन अच्छा नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ तरीके से। तो ऑडिटर कर क्या रहा है? ऑडिटर जब जाएगा तो वो रिपोर्टेड को कंपेयर करेगा रिक्वायर्ड से। वो जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको कंपेयर करेगा उन चीजों से कि जैसा रिपोर्ट करना चाहिए था, यानी जो रिपोर्ट किया है और जो रिपोर्ट होना चाहिए था वो उन दोनों को कंपेयर करेगा। और अगर उन दोनों में कोई फर्क होगा, कोई डिफरेंस होगा, कोई डेविएशन होगा तो वो शेयर होल्डर्स को बताएगा, वरना वो कहेगा सब कुछ ठीक है, आप इस कंपनी में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमें कौन बताता है? हु टेल्स अस द रिक्वायरमेंट, यानी ये कौन बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनेंगे? ये रिक्वायरमेंट हमें बताते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आपका अपना लोकल लॉ, यानी हर कंट्री के अंदर एक वर्ड में इस्तेमाल करने लगा हूं जो कि आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। एक वर्ड होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हर कंट्री का उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। मतलब ये वो फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी ये वो फ्रेमवर्क होता है तो जो बताता है कि इस कंट्री की जुरिस्डिक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे। वो रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट हमें मिलती है इंटरनेशनली फ्रॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो रिक्वायरमेंट तो वो है जो स्टैंडर्ड्स ने कहा, रिपोर्टेड वो है जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा। सो बेसिकली ऑडिटर का काम क्या हो गया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से और फाइंड आउट करेगा कि इनके दरमियान कोई डेविएशन है या नहीं है। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं मिस स्टेटमेंट। यानी अगर रिपोर्टेड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायर्ड तो फिर जब डिफरेंस निकलता है उस डिफरेंस को कहा जाता है मिस स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती है। गलती से मतलब दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। तो अगर हम देखें थोड़ा सा इसको और ड्रिल डाउन करें तो ऑडिटर इज देयर टू फाइंड आउट द मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और ऑडिट करने का तरीका कौन बताएगा? ऑडिट कर किस तरह किया जाएगा, ऑडिट में किस तरह से आप चीजें परफॉर्म करेंगे, किस तरह वेरीफाई करेंगे, ये हमें दूसरे स्टैंडर्ड्स बताते हैं जो कहलाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आईजास इनको हम कहते हैं। तो आप आसानी के लिए आपको सिर्फ समझा दूं, इतना इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है आपको। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनेंगे। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में आईजास कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि ऑडिट किस तरह किया जाए, ऑडिट किस तरह किया जाए, किस तरह वेरिफिकेशन की जाए, किस तरह चेकिंग की जाए, किस तरह एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। ओके, तो अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इट कंसिस्ट ऑफ आवर लोकल लॉ
which is Companies Act 2017 and international standards which is IFRS and IAS, यानी इन दोनों चीजों से मिलकर लोकल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मिलकर हमारा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है, जिसके तहत हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और फिर ऑडिटर उसी फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेगा और देखेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं या नहीं करते। चलिए, आई थिंक मैं रुक कर 2 मिनट के लिए आपसे कोई सवाल अगर आपका है तो हम 1-2 सवाल ले लेते हैं। Not a lot of questions because it might waste a lot of time at this point of time, क्योंकि आपके दिमाग में देखें बहुत सारे अगर सवाल होंगे ना तो वो खुद ब खुद क्लैरिफाई होते रहेंगे as I move on। लेकिन इस point of time पे if we can have 1 or 2 questions, you may raise your hand if you have a question, and if you choose not to ask questions at this point of time, it's perfectly all right। हम आगे बढ़ते हैं और फिर आप question answer session में questions पूछिएगा। So anyone with any question specifically? Okay, Jawad Sheikh, yes, proceed। Can you unmute yourself or do I have to do it for you? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो हम ऑडिट करते हैं तो उसमें जो है ऑनर जो है वो कौन होता है और उसको हम मतलब ये कि पिफा जो है पब्लिक सेक्टर में ऑडिट करती है तो किस तरह से जो है ना हम उसको देखेंगे ऑनर के पर्सपेक्टिव से। Great, okay, thank you जवाब। A good question brother, because क्योंकि आप सारे लोग पिफा से बिलोंग करते हैं, आप पिफा के स्टूडेंट्स हैं और आप पिफा के मेंबर्स हैं, आप में से कुछ लोग। सो पिफा इज बेसिकली पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक अकाउंटिंग, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका ताल्लुक ज्यादातर पब्लिक सेक्टर से है, गवर्नमेंट बॉडीज से है। तो अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी है जिसका आप ऑडिट करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, तो उसका स्टेक किसके पास है? उसका स्टेक गवर्नमेंट के पास है। यानी बेसिकली you are going to report to the government on the scope of the work that is given by them to the people who are managing their entities। ठीक है, तो वहां पे ओनर्स, क्योंकि ओनर्स रहेंगे तो शेयर होल्डर्स ही, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है तो उसके जो ओनर्स हैं they are the government primarily, so you reporting to them, they become your intended users। ठीक है, I hope I have answered your question जवाब। Okay, anything else that anyone would want to ask? फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी क्लैरिफाई हो जाएंगी, बिकॉज मेरे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, there are a lot of things to discuss। और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इस सेशन में हम चीज़ें पूरी नहीं कर पाए, so maybe we'll have another session for you as well in future। Okay, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। अब हमने कहा, देखें ऑडिटर क्या ढूंढने जाता है, यानी मैं अगर आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल करूं, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या ढूंढ रहा है? ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स ढूंढ रहा है। मतलब वो ये देख रहा है कि कहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। वो ये देख रहा है कि कहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहे। जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, वहां पर क्या होती है? वहां पर होती है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या ऑडिटर हर छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट को देखेगा? ओके, प्लीज म्यूट योर माइक्स, थैंक यू। ओके, सो आई हैव म्यूटेड ऑल ऑफ यू। आप सबके पास अपने आप को अनम्यूट करने का इख्तियार मौजूद है। आई हैव गिवन यू द राइट, लेकिन उस इख्तियार को उसी वक्त यूज कीजिएगा जब आपको सवाल पूछना और मैं आपका नाम कॉल आउट करूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप म्यूट रखें अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। ओके, तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो छोटी छोटी गलतियों को नहीं देखता, क्योंकि उसके पास फहद साहब आपका माइक म्यूट हो गया। वो एक्चुअली होस्ट ने सबको म्यूट किया था तो उसने मुझे भी म्यूट कर दिया। ठीक है, तो इट्स ऑल राइट, चलें कोई बात नहीं। प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस ना आए और आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। ओके ओके, जाहिद साहब मेरी आवाज क्लियर आ रही? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है किसी किस्म का? जी क्लियर है। ओके, चलिए मूविंग ऑन। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी लेकर आते हैं, और मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एनी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट which is expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of financial statements। मतलब मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए आसान ज़बान में, यानी हर वो चीज, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, हर वो चीज जिसके होने या ना होने या गलत या सही होने से अगर यूजर के डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, वो मटीरियल है। यूजर्स कौन है? शेयर होल्डर्स हैं।
किस चीज को यूज करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। जब साल के आखिर में मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देती है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं और उनको यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं कि वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आया हमने इस कंपनी के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है या जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी बाहर निकाल लेना है। तो ऑडिटर क्या तलाश करने जा रहा है? ऑडिटर मिसस्टेटमेंट तलाश करने जा रहा है, लेकिन ऑडिटर हर छोटी छोटी गलती को इतना ध्यान से नहीं देखेगा, फुल स्टॉप और कॉमा की गलती को नहीं देखेगा, छोटे छोटे अमाउंट्स को नहीं देखेगा, बल्कि ऑडिटर का कंसर्न उस गलती से है जो बड़ी गलती है, जो मटीरियल गलती है, जिससे यूजर का डिसीजन तब्दील हो सकता है। बड़ा पुराना केस है मैकडॉनल्ड्स इंडिया। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने अपने कस्टमर्स को नॉन वेजिटेरियन खिला दिया, जो कि रिलीजियसली उनके लिए ठीक नहीं है। जब कुछ कस्टमर्स को पता चला तो उन कस्टमर्स ने मैकडॉनल्ड्स इंडिया पर केस फाइल कर दिया। वो केस कोर्ट में लड़ा गया, जो कि मैकडॉनल्ड्स हार गया, और उस केस के हारने की वजह से मैकडॉनल्ड्स इंडिया को एक फाइन, एक पेनल्टी पे करनी पड़ी, और उन्होंने उस पेनल्टी के अमाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज़ाहिर शो करना था, क्योंकि वो उनका खर्चा था, लेकिन उन्होंने उसका नाम तब्दील कर दिया। उन्होंने पेनल्टी को किसी और नाम से लिख दिया, क्योंकि बहरहाल डबल एंट्री तो पूरी करनी थी, डेबिट क्रेडिट तो पूरा करना था, खर्चा तो दिखाना था, लेकिन खर्चे का नाम तब्दील कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके शेयर होल्डर्स तक पहुंचेंगे और शेयर होल्डर्स पेनल्टी देखेंगे और पेनल्टी का रीजन पढ़ेंगे, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से इस कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लेंगे। यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक ऐसी मिसस्टेटमेंट थी जिससे यूजर का डिसीजन तब्दील होने के चांसेस मौजूद थे। तो ऐसी मिसस्टेटमेंट को हम कहते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि अगर कोई बहुत बड़े अमाउंट की मिसस्टेटमेंट है तो भी उससे यूजर का डिसीजन तब्दील होगा, और अगर कोई बड़े अमाउंट की मिसस्टेटमेंट नहीं है लेकिन कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दी मैकडॉनल्ड्स की, कि जिससे यूजर का डिसीजन चेंज होगा, तो वो हमारे लिए कहलाती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो है कि जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन तब्दील हो जाए, और ऑडिटर ने यही ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने ये नहीं कहना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर ये नहीं कहेगा कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक नुक्ते की भी गलती नहीं है, बल्कि ऑडिटर ये जरूर कहता है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसी ओमिशन नहीं है, कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट नहीं है जिससे यूजर्स का, मतलब शेयर होल्डर्स का डिसीजन तब्दील हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हमें बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अश्योरेंस देता है, तो वो अश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं होती, वो 100% नहीं होती, वो गारंटी नहीं होती, बल्कि वो अश्योरेंस रीजनेबल अश्योरेंस होती है। और रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब ये कि वो ये कहता है कि मैं छोटी छोटी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हो सकता है जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने ऑडिट किया है इस पे छोटी मोटी गलतियां मौजूद हो, छोटी मोटी ओमिशंस मौजूद हो, छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट्स मौजूद हो, लेकिन मैं आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं दे सकता, बट आपको रीजनेबल अश्योरेंस जरूर दे सकता हूं कि हाँ मैंने इतना जरूर देख लिया है, इतना जरूर मैंने ठोक बजा लिया है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई ऐसी ओमिशन नहीं है, कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट नहीं है जिससे आपका यानी यूजर्स का यानी शेयर होल्डर्स का डिसीजन तब्दील हो जाए। मतलब अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो ना करें, और इन्वेस्ट कर चुके थे तो अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लें। So the concept of reasonable assurance says that it is not an absolute assurance, it's a high level of assurance. And ये क्यों है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं भाई reasonable assurance क्यों है, ऐसा क्यों है कि assurance absolute नहीं हो सकती, reasonable होती है, उसकी वजह, उसकी कुछ वजूहात हैं, और उसकी वजूहात हैं inherent limitations of audit. Audit is of a test nature, यानी मैं सैम्पल बेस पे काम करता हूँ, मैं सारी ट्रांजैक्शंस को नहीं देखता, मैं कुछ चीज़ों को देखता हूँ, तो इसलिए कुछ चीज़ें मुझसे रह जाती हैं। ऑडिटर्स वर्क इज परमिएटेड बाय जजमेंट, मतलब ऑडिटर के काम में जजमेंट की दीवार मौजूद है, तो लिहाजा जजमेंट गलत भी हो सकती है। एंड ऑडिट एविडेंस इज पर्सुएसिव रादर देन बीइंग कंक्लूसिव, और जो मुझे काम मिलता है, जो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो मुझे एक हद तक कन्विंस तो करते हैं कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसे ही हैं, लेकिन कोई हतमी फैसला वो नहीं होता। जाहिर साहब मुझे लगता है आपके बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मीटिंग, बट शायद 100 से ऊपर लोग ज्वाइन नहीं कर सकते मीटिंग। एम आई राइट? क्योंकि 100 का नंबर क्रॉस नहीं हो रहा, और कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं। क्या ऐसे ही हो रहा है? ओके,
Anyways, I think it's going on live on Facebook as well. So those who are unable to join, आप उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो फेसबुक पर इसको देख लें, बिकॉज जहाँ तक मुझे इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, यहाँ पर 100 से ऊपर लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते. So that is why जब नए लोग ज्वाइन करते हैं तो पुरानों को निकलना पड़ जाता है. So they would feel demotivated. So you can access your Facebook page of PIFA, जहाँ पे आपको ये लाइव सेशन भी अवेलेबल हो जाएगा. Okay, moving on. फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. यानी ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करे. स्केप्टिसिज्म मतलब शक, डाउट. तो ऑडिटर बिल्कुल शक करता है, डाउट करता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो प्रोफेशनली शक करे, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करे. इसका मतलब क्या है? ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड, assuming the management neither honest nor dishonest. वो एक बिल्कुल क्वेश्चनिंग माइंड के साथ काम करेगा, सवाल जवाब करेगा, बाल की खाल निकालेगा, लेकिन वो काम करते वक्त ना तो किसी को ऑनेस्ट अज्यूम करेगा, ना किसी को डिसऑनेस्ट अज्यूम करेगा, क्योंकि उसका एक काम नहीं है. अगर उसने लोगों को ऑनेस्ट समझना शुरू कर दिया तो वो उनकी हर बात पर यकीन करेगा, जो कि गलत होगा. और अगर उसने लोगों को डिसऑनेस्ट समझना शुरू कर दिया तो वो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, ये भी गलत होगा. तो लिहाजा उसने न्यूट्रल रहते हुए बगैर किसी परसेप्शन के अपना काम करना है. फिर आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, और ये बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा, और आज हम इनके फर्क को वाजे करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों के दरमियान आपको फर्क पता है, बट लेट्स क्लैरिफाई इट, लेट्स मेक इट मोर विविड इन आवर माइंड्स. सो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में फर्क क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट वही ऑडिट है जिसकी हम अभी पिछले 15-20 मिनट से बात कर रहे हैं, कि जो शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी में आता है और कंपनी के मैनेजमेंट के काम को इवैल्यूएट करता है और फिर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देता है. ये एक्सटर्नल ऑडिटर है जो बाहर से आएगा. इंटरनल ऑडिटर कौन है? इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का आदमी होता है. मैनेजमेंट भी तो चाहती है कि इससे पहले कि वो बाहर का आदमी आए और हमारे काम में कीड़े निकाले, ये जरूरी है कि हमारा एक अपना भी ऑडिटर हो जो हमारे काम को देखे और इवैल्यूएट करे और हमें गलतियां बताए, ताकि वो बाहर के ऑडिटर के आने से पहले हम अपनी गलती को दुरुस्त कर लें. सो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट का आदमी है जिसको मैनेजमेंट हायर करेगी, जिसको मैनेजमेंट पे करेगी, जिसको मैनेजमेंट जब चाहे निकाल सकती है. लिहाजा ये बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है. और ये एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर देता है, इंप्रूव कर देता है, ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर आए तो कम से कम कीड़े निकाल पाए. बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, एक शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है. फिर वो अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करेगा, अपनी कॉम्पिटेंस को एक्सरसाइज करेगा, और फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. सो डिफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, इंटरनल को अपॉइंट करती है मैनेजमेंट. डिफरेंस ऑफ रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को. डिफरेंस इन स्कोप ऑफ वर्क, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसको बताते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लेकिन इंटरनल ऑडिटर कैसे काम करेगा उसको बताएगी मैनेजमेंट. रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एक्सटर्नल ऑडिट की एक्टिविटी जनरली रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है, इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटी जनरली नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है. एंड डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर का आदमी है, इंडिपेंडेंट आदमी होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर चूंकि आपका एम्प्लॉय होता है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है. लिहाजा इंटरनल ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है वो कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के मुकाबले पर नहीं हो सकती. फिर अब ऑडिट को थोड़ा सा हम ब्रीफली देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली ऑडिट इज. ऑडिट में होता क्या है? देखें, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डू, गेट एंड गिव. Some things that we do, some things that we get, and some things that we give. ये ऑडिट है, इसलिए ऑडिट को लिखा है बीच में, और ये 3 बॉक्सेस आप ऑडिट के इर्द गिर्द देख रहे हैं. तो ऑडिटर जो प्रोसीजर करेगा, जो यानी जो काम ऑडिटर करेगा वो कहलाएंगे प्रोसीजर्स. दैट इज समथिंग ही विल डू. प्रोसीजर्स करके जो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे वो कहलाएंगे ऑडिट एविडेंस. दैट इज समथिंग ही विल गेट. और उस एविडेंस की बेस पर, उन रिजल्ट्स की बेस पर जो वो देगा, that will be called as audit opinion. So do means procedures, get means audit evidence, and give means opinion. जो कुछ ऑडिटर करेगा वो प्रोसीजर्स होंगे, जो उसको मिलेगा वो एविडेंस होगा, और जिसकी बेस पर वो कुछ देगा वो ओपिनियन होगा. That's going to be the audit opinion. Okay. Yes, Hafiz Usman, do you have a question right now? Yes, Hafiz Usman, please proceed. Unmute yourself. Ask me your question. Can you unmute yourself?
Yes, I have unmuted you. Hafiz, please proceed if you have a question. Okay. Ramiz Raja, do you have a question, Ramiz Raja? Yeah, I have a question. Could you please brief me, because it's too early to ask this question. बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन की नीयत से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर्स हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट के तो हमें पता है कि क्या होते हैं, सब्सटेंटिव और टीओसीज. व्हाट अबाउट बिल्कुल. इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स, इसको अगर शॉर्टली आप ब्रीफ कर दे प्लीज. चलिए ठीक है. असल में ओके रमीज, एक्चुअली हमारा आज का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेसिकली है एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट नहीं है. लेकिन चूंकि ये चीजें आपस में लिंक्ड है और जाहिर है यू आर एंशियस टू नो कि इंटरनल ऑडिटर कैसे काम करते हैं. देखें, बाय नेचर इंटरनल ऑडिटर भी है तो ऑडिटर ही, काम वो भी वैसे ही करेगा, प्रोसीजर्स उसके भी वैसे ही होंगे, लेकिन उसकी कोई स्ट्रैटेजी डिफाइंड नहीं है. देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटर की तो स्ट्रैटेजी डिफाइंड है ना, ये सब्सटेंटिव है, ये टीओसी है, ये करेगा, ये मिलेगा, ये देगा. लेकिन इंटरनल ऑडिटर चूंकि उसके काम का स्कोप स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं करते, कोई प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड नहीं करती, उसके काम का स्कोप वो खुद या उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है. तो उसको मैनेजमेंट बताएगी किन एरियाज में क्या काम करना है, कैसे काम करना है. But the basic structure of internal audit, that theme of performing procedures, that theme of obtaining audit evidence, that theme of giving a report, that will be the same as external auditor, क्योंकि nature wise तो वो auditor ही है. लेकिन exactly उसके काम करने की strategy क्या होगी ये vary करेगी from organization to organization, from one auditor to another auditor. I hope Ramiz I've answered your question. All right, thank you. Okay. So Hafiz Usman, do you have a question or you've lowered your hand? Okay, Faizan Ali, yes, you may proceed. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर. सर आपने जैसे कहा कि ऑडिटर को मैनेजमेंट बताती है कि आपको ये करना है वो करना है. सर एज अ ऑडिटर हमें तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना सर, तो हम अपनी एडवाइस नहीं दे सकते अगर हम बाउंड होंगे तो मैनेजमेंट के थ्रू. ये तो फैजान, मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको कोई डायरेक्शंस नहीं देता. एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी मर्जी से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंस के आला दर्जे पर फाइज है. लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर है वो तो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, उसको मैनेजमेंट की बात माननी पड़ेगी और इसीलिए वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर होता है. ठीक है, ओके. I hope this has answered your question. Okay, let's move on. So audit procedures, अब चूंकि मुझे एक दो सवालात से देखें, सवाल मैं बीच में इसलिए देना मैंने शुरू कर दिया because through your questions actually I am able to understand कि आप किस लेवल के लोग हैं, और आपके सवालात सुन के मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया कि आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स हैं और आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं. तो मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ अब और उन चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से मैं गुजार सकता हूँ जो कि आपको पता है. So these are the 7 audit procedures that an auditor performs. जब मैं कहता हूँ do, get and give. Do is what? Procedures. Get is what? Audit evidence. Give is what? Audit opinion. तो जो मैं procedures करूँगा वो कौन से होंगे? तो ये वो procedures हैं जो एक auditor perform करता है. And there are 7 types of audit procedures और इनको याद रखने के लिए हमने एक acronym बना दिया है कायरो. और कायरो इजिप्ट का कैपिटल है, तो हमने इसका एक्रोनिम बना दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं. ये जिस सीक्वेंस में कायरो के लेटर्स हैं उसी सीक्वेंस में ये ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं. कॉन्फर्मेशन, ऑडिटर थर्ड पार्टी से कॉन्फर्मेशंस लेता है, बैलेंसेस कंफर्म करता है. एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर कुछ रेशियोज कैलकुलेट करता है, कंपैरिजंस करता है. ऑडिटर इंस्पेक्शन करता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है, मैनेजमेंट की कैलकुलेटेड चीज़ों को रिकैलकुलेट करता है देखने के लिए सही से कैलकुलेटेड है या नहीं. मैनेजमेंट की परफॉर्म की हुई चीज़ों को वो रीपरफॉर्म करता है देखने के लिए कि सही से परफॉर्म है या नहीं, और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. तो ये वो तमाम तरीके हैं, ये वो तमाम प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू ऑडिटर को क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस मिलेगा. तो जब ऑडिटर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स उसको मिलेंगे वो कहलाएंगे ऑडिट एविडेंस, जिसकी बेस पर वो ऑडिट ओपिनियन देगा. सो ऑडिट एविडेंस के लिए क्या जरूरी है? ऑडिट एविडेंस के लिए जरूरी है कि वो सफिशिएंट हो और अप्रोप्रिएट हो. सफिशिएंट मतलब वो काफी हो और अप्रोप्रिएट मतलब वो रेलेवेंट हो और रिलायबल हो. तो जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और मुझे ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो ये जरूरी है कि वो सफिशिएंट हो, मतलब मैंने अच्छा खासा काम करके वो एविडेंस हासिल किया हो, और अप्रोप्रिएट हो मतलब वो रेलेवेंट हो, यानी जिस मकसद के लिए मैंने वो प्रोसीजर परफॉर्म किया है. अगर मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी है या मैंने कोई इंस्पेक्शन किया है या मैंने कोई ऑब्जर्वेशन करी है, तो जिस मकसद के लिए किया है वो मकसद पूरा हो रहा हो, ये रेलेवेंसी यहाँ पे आती है. और फिर दूसरी बात ये
तो जो ऑडिट एविडेंस हो वो रिलायबल हो, यानी उस पर मैं यकीन कर सकूं, उस पर रिलाय कर सकूं और उसकी बेस पर मैं ऑडिट ओपिनियन दे सकूं। तब रिलायबिलिटी के अंदर कुछ बातें आती हैं। There are factors which influence the reliability of audit evidence. What are those factors? आइए देखते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज मोर रिलायबल देन अ फोटोकॉपी। अगर आप क्लाइंट से, अगर आप अपनी उस क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उससे आप उनका रेंट एग्रीमेंट मांगते हैं, तो अगर वो आपको रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल फॉर्म में देंगे तो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू अ फोटोकॉपी, बिकॉज फोटोकॉपीज फेक हो सकती हैं, ओरिजिनल चीजों के फेक होने के चांसेस कम होते हैं। सो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज मोर रिलायबल देन अ फोटोकॉपी। Then audit evidence obtained in written form is more reliable than a verbal audit evidence. Then audit evidence obtained from independent party is more reliable than that obtained from management. तो third party होगी जिसका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनसे मिलने वाला ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा। एंड ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल इफ इट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, मतलब जो डायरेक्टली ऑडिटर के हाथ में चीज आएगी वो ज्यादा रिलायबल होगी एज कंपेयर टू वो चीज जो मैनेजमेंट के थ्रू होती हुई आए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑडिट एविडेंस। और फिर अब आते हैं गिव पर। डू देख लिया, प्रोसीजर्स क्या करेंगे। गिव देख लिया, ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो उसका कैसा होना जरूरी है। अब गेट देख लिया, सॉरी हमने डू देख लिया, मतलब हम क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। गेट देख लिया कि जो हमें ऑडिट एविडेंस मिलेगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब गिव देखने जा रहे हैं कि उस ऑडिट एविडेंस की बेस पर जो हम ओपिनियन देंगे वो कैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा। बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा बिकॉज ये पूरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये पूरे टॉपिक्स हैं, इस पर घंटे लग जाते हैं बहुत सारे। उस वक्त तो एक ओवरव्यू है आज, इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ेगी तो इन फ्यूचर आपके साथ कोई एक टॉपिक पर हम डिटेल सेशंस भी कर रहे होंगे। So audit report is the only document of auditor which is made available to general public. So auditor ऑडिट के आखिर में एक ऑडिट रिपोर्ट लिखता है, किसके लिए लिखता है, शेयर होल्डर्स के लिए लिखता है। और ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है ऑडिटर का जो शेयर होल्डर्स तक पहुंचता है, या जनरल पब्लिक तक पहुंचता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जाता है क्योंकि वो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही होती है। और इस डॉक्यूमेंट को, इस ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटर साइन करता है। ऑडिट रिपोर्ट 2 टाइप्स की होती है प्राइमरीली, आपने सुना होगा ही और बल्कि पढ़ा भी होगा, और आप तो जीते हैं माशाल्लाह। मैं आपसे क्या कहूंगा, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है कि जिसके अंदर ऑडिटर का ओपिनियन क्लीन होता है, यानी जिस ओपिनियन के अंदर ऑडिटर ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो कहलाती है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, साफ सुथरी रिपोर्ट, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मसले मसाइल निकलते हैं और ऑडिटर को अपना ओपिनियन तब्दील करना पड़ता है तो वो रिपोर्ट कहलाती है मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। और इस ओपिनियन के अलावा अगर ऑडिटर ने अपने शेयर होल्डर से कोई और भी बात कहनी है तो वो इसी रिपोर्ट के अंदर कहेगा। There are certain important dates in the audit of financial statement. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, कुछ डेट्स की बड़ी सिग्निफिकेंस है ऑडिट के अंदर। सबसे पहले डेट आती है डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So date of the financial statements is basically the year end date, यानी 30th of June, 31st of December, 31st of March, 30th of September। ये वो डेट्स हैं, यानी ये वो डेट है जिस दिन तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट करेंगे। सो जो ईयर एंड डेट है जिस दिन तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो कहलाती है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद एक डेट आती है विच इज नोन एज डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो डेट है कि जिस दिन मैनेजमेंट, यानी वो लोग जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज किया। फिर वो डेट आती है जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट इशू करता है, और फिर वो डेट आती है जब उसकी रिपोर्ट और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पब्लिक तक पहुंचते हैं, अवाम तक पहुंचते हैं, और आम तौर पे इस डेट को कहते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चारों डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब दे आर इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, दे अकर वन आफ्टर द अदर। और ये अब सारी चीजों को समराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑडिट साइकिल तरतीब दी, और ये ऑडिट साइकिल आपके सामने है, और मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि आई होप एंड आई हैव अ फर्म बिलीफ कि यू नो इट क्वाइट वेल, बिकॉज जो आपने क्वेश्चंस पूछे तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया। तो ये पूरी एक ऑडिट साइकिल आप अपने सामने देख पा रहे हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगा सकते, वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी माइट हैव मोर सेशंस इन डिटेल। तो पहला फेज जो, रमीज जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल हैव योर क्वेश्चन इन अ व्हाइल। एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑडिट का पहला फेज है कि जब कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि आप उनको ऑडिट करें तो आप उनके ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उनके ऑडिट को एक्सेप्ट करने के बाद आप उस ऑडिट की प्लानिंग करेंगे,
प्लानिंग के बाद आप वो ऑडिट परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म आप दो तरह से करते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करते हैं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप परफॉर्म करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डायरेक्टली काम करते हैं तो वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर कहलाता है, और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डायरेक्टली नहीं बल्कि जिस सिस्टम के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने उस सिस्टम पे आप काम करते हैं तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। लेकिन चाहे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करें या आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करें, दोनों को करने का पर्पस एक ही है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है। फिर अगला फेज आता है कि आप अपने काम को रिव्यू करते हैं, बार बार देखते हैं, और फिर आखिर में यू गिव अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर रिव्यू। So this is the audit cycle right in front of you. Yes, Ramiz, you may unmute yourself and ask me the question. Can you unmute yourself? Okay, let me do it for you. Okay, Ramiz, you may speak now. Sir, actually, I don't have a question, just have a suggestion. Sir, Okay. Bolo. Actually, I don't have a question, just a suggestion कि एक्चुअली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो आई एम प्रोफेशनली क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने Okay. जिनको रिकमेंड किया ना दे आर लिटिल बिट दे डोंट हैव लिटिल बिट नो अबाउट ना, तो आई इट इज रिक्वेस्टेड कि आप थोड़ा सा और अगर इसको Okay. इजी करके, कि देयर आर आई गेस 20-30% पीपल आर दोस हु हैव रिकमेंडेड, तो वो उनको Okay. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगी। तो Great, great. Okay, रमीज, वैसे मैंने पूरा अपना सेशन इसी तरह जी, से जी, जी। उसका फ्लो रखा है कि हमने बिल्कुल बेसिक्स पर बात की है, बट देयर आर सर्टेन एरियाज ऑब्वियसली जिसके हम अगर डिटेल में जाएंगे तो शायद वो Sure, उन sure, बिगिनर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। Sure, sure. तो मैं बहरहाल थोड़ा सा और इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो दिस इज द ऑडिट साइकिल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके अंदर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा और इलैबोरेट करके। तो those who are actually new and those who are the beginners, कि सबसे पहला फेज ऑडिट का ये होता है कि आप ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप डायरेक्टली काम नहीं करने लग जाते, बल्कि आप अपने काम को प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से एरियाज के अंदर रिस्क मौजूद है, कहां पर ज्यादा काम करना है, कहां पर कम काम करना है, कहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, और फिर उस प्लानिंग के मुताबिक आप अपने काम को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के दो तरीके हैं, एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं जो आप डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट्स पर, फिगर्स पर परफॉर्म करेंगे, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वो प्रोसीजर्स हैं जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर तो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जिस सिस्टम के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम पे जब आप काम करेंगे तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहलाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इन दोनों को परफॉर्म करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन फॉर्म करना है, और वो ओपिनियन हम कहाँ देंगे, वो ओपिनियन हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दे रहे होंगे, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि ऑडिट ओपिनियन की दो टाइप्स हैं, आइदर इट्स एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट वो है जो क्लीन रिपोर्ट है, और मॉडिफाइड रिपोर्ट वो होती है जिसके अंदर ऑडिटर अपना ओपिनियन तब्दील कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर आज के हमारा सेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला सेशन का हमारा पार्ट था जो इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल से ऑडिट से रिलेटेड, दूसरा पार्ट हमारा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स पे है। तो अब वो पार्ट रिलेटिवली शॉर्ट पार्ट है, विच विल बी कवर्ड इन अनदर 10 मिनट्स और सो। लेकिन उस पार्ट पर जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर अब तक आपके कोई भी सवालात हैं तो यू कैन एड्रेस देम टू मी, ताकि आपके सवालात में सुन लूँ और फिर हम अपने उस नेक्स्ट पार्ट पे जाएं तो एक क्लैरिटी आ जाए। सो द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ फॉर अ व्हाइल। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, एनीवन, एनीथिंग दैट यू वुड वांट मी टू रिपीट और यू वांट मी टू क्लैरिफाई और फर्दर इलैबोरेट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैंने आपको अपने आप को अनम्यूट करने का इख्तियार दे दिया है फिलहाल, तो आप में से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ रेस करे। मैं जब आपका नाम कॉल आउट करूंगा, जब आप अपना नाम सुने तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, बात कीजिएगा और अपने आप को वापस म्यूट कर दीजिएगा, और फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। सो हाफिज उस्मान, यू रेज योर हैंड फर्स्ट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑन योर ओन एंड स्पीक। यस उस्मान। Any question, उस्मान? आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलें। Okay, we have another one. उस्मान, शायद तुम्हारी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमें कभी आती कभी नहीं आती, so there is a problem. मैंने कहा डू, गेट एंड गिव्स, तीन चीजें आपने बताई हैं।
इसमें से जो गेट्स है ना, गेट यानी क्या चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट नहीं मैंने लिया, अगर वो कुछ दोबारा हो जाए तो। चलिए मैं उस स्लाइड पर चला जाता हूँ और आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फहद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है ये बाद में शेयर भी कर दी जाएगी मेंबर्स ओके, को। परफेक्ट तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो आपको एक गुड न्यूज मिल गई कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन के, आपको इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट नाउ, ठीक है? ओके, सो मूविंग ऑन टू जवाद शेख। यस जवाद, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या फ़र्क है? हम मतलब पीआईए का जो ऑडिट है वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, लेकिन उनके स्कोप में क्या डिफरेंस होता है, रिपोर्टिंग के उसमें क्या डिफरेंस होता है? वो भी क्या इसी तरह से ऑडिट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स है, या वो कंपनी की जो इंटरनल कंट्रोल्स चेकलिस्ट है उसको भी फॉलो करते हैं? ओके जवाद, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू मिस्ड आउट दैट पार्ट। मैं अगर थोड़ा सा फिर पीछे मुझे जाना पड़ेगा टू दैट स्लाइड जहाँ पर हमने बाकायदा इनके डिफरेंसेस की बात करी थी। मे बी यू मिस दैट पार्ट आउट और यू डिड नॉट नोटिस कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। ये हमारी स्लाइड थी जहाँ पे हमने बात करी थी एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बेसिकली शेयर होल्डर्स का आदमी है, वो शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे आता है। और जो इंटरनल ऑडिटर है वो मैनेजमेंट का आदमी है, वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, उसको मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। और फिर मुझसे किसी ने सवाल किया था कि सर इनके स्कोप में फर्क क्या है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, एक्सटर्नल ऑडिटर किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। एक्सटर्नल ऑडिटर वही काम करेगा जो उसको करना चाहिए और जो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने बोला है। और थोड़ा सा मैं अगर स्कोप की स्पेसिफिकली बात करूं तो एक्सटर्नल ऑडिटर का फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देना होता है, वो किसी और चीज को नहीं देखता, वो और एरियाज में नहीं जाता। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का स्कोप कंपैरेटिवली बड़ा होता है। इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल चीजें भी देखेगा, नॉन फाइनेंशियल चीजें भी देखेगा, वो सारे कंट्रोल्स देख रहा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम देख रहा होता है। और ना सिर्फ ये कि वो इसलिए देख रहा होता है क्योंकि उसको ओपिनियन देना है, बल्कि वो इसलिए देखता है क्योंकि उसके अंदर इंप्रूवमेंट रेकमेंड करनी है। तो चूंकि इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का आदमी है, मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, वो उनकी बेटरमेंट के लिए काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सिस्टम्स को देखेगा, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेगा, उनके लिए रिकमेंडेशंस प्रिस्क्राइब करेगा, ताकि इससे पहले कि एक्सटर्नल ऑडिटर आए वो चीजें इंप्रूव हो जाएं, एक बेहतर शक्ल में आ जाएं और हमारी एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट की जा सके। तो ये थोड़ा सा दोनों में फर्क है, दोनों की रिपोर्टिंग लाइंस डिफरेंट है, दोनों के अपॉइंटमेंट डिफरेंट तरीके से होती है, और दोनों का स्कोप ऑफ वर्क, काम करने का तरीका और काम करने की बाउंड्री थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप जवाद आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके जाहिद साहब, क्या मीटिंग पर कोई कैप लगा हुआ है 100 पार्टिसिपेंट्स का? बिकॉज मोर देन 100 पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन। जी बिल्कुल, अब उसके लिए ये है कि जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारा फेसबुक का जो पेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो प्लीज वो डिमोटिवेट ना हो, आप उनको कन्वे कर दें कि वो लाइव फेसबुक पर देख लें, बिकॉज मीटिंग विल नॉट अलाउ मोर देन 100 पीपल। और उससे होता ही है कि हम नए लोग एंटर करेंगे तो पुराने लोग बाहर निकल जाएंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ chaos। सो आप फेसबुक लाइव का ऑप्शन यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस मीटिंग restricts 100 people. Okay, yes Fahad, your question now, you may unmute yourself. Fahad, are you there? Okay, I think you're not there. Maybe you raise your hand. Hafiz Usman, yes. अर्ज ये है कि इंटरनल ऑडिट में हम एथिकली कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं? एथिकली जरा थोड़ी सी तफसील से बता दें। सब कुछ देख सकते हैं आप। देखिए, ऑडिटर सब कुछ देख सकता है, ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ, इंटरनल ऑडिटर, चूंकि मैंने अभी कहा ना उस्मान कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉई है, उसको मैनेजमेंट हायर करती है, उसको मैनेजमेंट जब चाहे निकाल सकती है, तो वो बहुत आज़ाद नहीं होता। अगर मैनेजमेंट उसको कोई चीज़ देखने से रोकेगी तो उसको रुकना पड़ेगा,
एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपसे कुछ भी मांग सकता है, वो आपसे किसी भी इंफॉर्मेशन का तकाजा कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी शख्स से बात कर सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में एंटर हो सकता है। ऑडिट का तो पर्पस ही है ना कि आप आज़ाद हो, तभी तो आप इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आपके काम पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी फहद अयूब। Okay, Jawad, you've raised your hand once again. Do you have another question? Yes, I have another question. Could you please elaborate further auditor independence and risk management? What is the procedure, how to do risk management? मैं बिल्कुल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पर अभी आना है। हमारे सेशन का दूसरा पार्ट ही वही है, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो इंडिपेंडेंस तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन हाँ रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप चाहते हैं मजीद इलैबोरेट करूं तो मैं उसको इलैबोरेट कर देता हूं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इट्स ओवर हियर। वापस अपनी स्लाइड पर जाता हूं ताकि चीजें क्लैरिफाई हो जाए। ऑडिट साइकिल पे हम वापस आ जाते हैं। ऑडिट साइकिल का दूसरा फेज रिस्क असेसमेंट फेज, जहां पर हमने बात करी कि ऑडिटर काम करने से पहले रिस्क को असेस करेगा। देखें इसकी मैं आपको आसान मिसाल इस तरह से दूं जवाब, आई होप इट गोज अक्रॉस योर माइंड। जब आप कोई भी पेपर देने जाते हैं ना, यानी बचपन से अब तक जब तक हमने कोई पेपर देने हम गए, खासतौर पे बोर्ड एग्जामिनेशन, तो हमारे टीचर्स हमें क्या कहते हैं कि भाई देखो 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर है, और तुम ये करना कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो ना उसको मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर देना, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करना है। 100 मार्क्स का पेपर है और उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स है, मतलब 3 घंटे। तो इसका मतलब एक मार्क को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। और फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर का सवाल है तो मुझे पता होता है यार मुझे इस पर रफली 18 मिनट लगाने हैं, और अगर 20 नंबर का सवाल है तो मुझे पता होता है यार इस पे मुझे रफली 36 मिनट्स लगाने हैं। ये हम हर बार हर एग्जामिनेशन में सोच कर जाते हैं और हमारी फैकल्टीज इस पर फोकस करती है कि आपने इस स्ट्रैटेजी को, इस स्कीम को फॉलो करना है, लेकिन आप यकीन जाने कोई भी इसको फॉलो नहीं करता। क्यों? जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं ना तो आप देखते हैं कि यार यहाँ तो कुछ क्वेश्चन मुझे आते हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आते, तो वहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 नंबर का सवाल जो मुश्किल होता है आप उस पर जरूरत से ज्यादा टाइम लगाते हैं, और 10 नंबर का सवाल वो जो आसान होता है आप उस पर जरूरत से कम टाइम लगाते हैं। यानी आप एग्जाम में बैठकर हर क्वेश्चन को टाइम उसके रिस्क के मुताबिक देते हैं। तो मैं इसको इस तरह से जब आप थोड़ा सा समराइज करूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे शॉर्ट ऑफ टाइम, के जहां रिस्क वहां काम, जैसा रिस्क वैसा काम, जितना रिस्क उतना काम। यानी ऑडिटर अंधेरे में तीर नहीं चलाएगा, वो अपने काम को शुरू करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर के रिस्क को असेस करेगा। जिन एरियाज के अंदर उसको ज्यादा रिस्क लगता है वो वहां पर काम ज्यादा भी करेगा, काम ज्यादा अच्छा भी करेगा, और जहां पर रिस्क उसको कम लगता है वो वहां पर काम कम करेगा, ताकि ओवरऑल उसका टाइम बचे, काम अच्छा भी हो, वक्त पर भी मुकम्मल हो, और वो अपना ओपिनियन सही वक्त पर दे पाए। जवाब इंशाल्लाह सेशन के आखिर में मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूंगा, तो अगर कोई भी चीज स्टिल रह जाएगी क्लैरिफाई होने से, you can connect with me on WhatsApp or Facebook, and then we can have a detailed conversation about that. I will always be there for you. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Since we are short of time, हमें सेशन को कंप्लीट करना है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सेशन के आखिर में ही ले रहे होंगे। Yes, we'll have the question at the end now. ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट आप और वेट कीजिए, मैं अपना सेशन एंड करता हूँ in exactly 10 minutes, और उसके बाद 5 बजे तक फिर ये फ्लोर आप ही के पास होगा, मैं सुनूंगा, आप बोलेंगे। ठीक है जी, तो सेशन के दूसरे पार्ट पे आते हैं, विच इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल। देखिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना ऑडिट की, और ऑडिट की डेफिनेशन का आगाज ही इस बात से हुआ था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब ऑडिटर के काम की शुरुआत ही इंडिपेंडेंस से होती है। यानी अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और इंडिपेंडेंस का मतलब वो आजाद हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो गैर जानिबदार हो, वो अनबायस्ड हो, वो किसी को फेवर ना करे, वो किसी की तरफदारी ना करे, वो बिल्कुल न्यूट्रल राह पर रहते हुए काम करे। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इंडिपेंडेंस क्या शय है, इंडिपेंडेंस किस चीज से बनी है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट आता है विच इज नोन एज कोड ऑफ एथिक्स। ये बताता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, और ये बताता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। यानी
एक हम वर्ड यूज करते हैं फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स वो क्वालिटीज हैं जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंदर, हर पब्लिक अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए। How many are there? There are 5 fundamental ethical principle। ये 5 ऐसी क्वालिटीज हैं जो हर अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए। तो सर इसका इंडिपेंडेंस से क्या ताल्लुक है? इसका इंडिपेंडेंस से ये ताल्लुक है कि अगर ये 5 क्वालिटीज आपके अंदर हुई तो आप इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। तो 5 क्वालिटीज क्या है? वो 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है? आइए पढ़ते हैं, क्योंकि इनके बगैर ऑडिटर अधूरा है, इसके बगैर ऑडिट का मतलब ही कोई नहीं निकलेगा। पहला एथिकल प्रिंसिपल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। गेटिंग इट? मैं इसको आसानी के लिए उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बात रह जाए। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं कोई बात उसी वक्त कहूंगा जब मुझे कहने के लिए कहा जाएगा, बिला वजह कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब मैं कोई बात कह दूंगा तो उस पर स्टैंड करूंगा, उसको ओन करूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये इंटेग्रिटी है जो कहती है कि एक ऑडिटर का ऑनेस्ट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ट्रूथफुल होना, सच बोलना, ये बहुत जरूरी है। फिर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक ऑडिटर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस रहेगा, वो किसी की बातों में नहीं आएगा, वो किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं करेगा, वो किसी के साथ कोई लेन देन नहीं करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना, वो अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस्ड रहेगा। मैं एक बहुत एग्जैजरेटेड एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं कि अगर उसकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के भी कहेगा कि अपना ओपिनियन तब्दील कर दो, तो वो नहीं करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेट किया, लेकिन ये इसीलिए किया कि आपको बात समझ में आए कि ऑडिटर ने इतना इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, इतना आजाद होकर काम करना है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो शेयर होल्डर्स के लिए काम करेगा, लिहाजा उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसके साथ कोई लेन देन नहीं कर सकता, उसको कोई गलत काम करने पर मजबूर नहीं करेगा। सब्जेक्टिविटी इज टू नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स to override professional or business judgments। फिर आता है तीसरा एथिकल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है कि ऑडिटर वही काम करने की हामी भरेगा जिस काम को करने के लिए वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है। वो धोखा नहीं देगा, वो किसी ऐसे काम को करने की हामी नहीं भरेगा जिसको करने के लिए वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। आई हैव म्यूट योरसेल्फ। आई हैव डन इट नाउ। ओके। To maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure competent professional services based on current developments in practice, legislation and techniques। यानी ऑडिटर एक अपडेटेड आदमी होगा, वो अपनी एक्सपर्टीज को बिल्कुल अपडेटेड रखेगा और वो किसी भी ऐसे काम में हाथ नहीं डालेगा जिसको करने के लिए वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना हो। यानी वो किसी को भी धोखा नहीं देगा, वो वही काम करेगा जो करना वो जानता है। To act diligently in accordance with applicable technical and professional standards। फिर चौथा एथिकल प्रिंसिपल आता है confidentiality। Now this is the very important one, the most important one in fact, कि ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम करेगा, क्योंकि ऑडिटर के हाथों में वो इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि वो लोगों का बेड़ा गर्क कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो इंफॉर्मेशन को संभाल के रखेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको लीक नहीं करेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ना सिर्फ ये, उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आदमी है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए काम करेगा, ना अपने मफाद के लिए काम करेगा, ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करेगा, बल्कि बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी की तरह काम करेगा। To refrain from disclosing confidential information as it is acquired as a result of professional and business relationships without proper and specific authority to disclose, unless कि उसको लॉ कहे कि कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और आखिरी एथिकल प्रिंसिपल आता है, पांचवा एथिकल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल बिहेवियर। कि एक ऑडिटर जो है या एक अकाउंटेंट जो है वो चलता फिरता प्रोफेशनल बिहेवियर का एग्जांपल होगा। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका नाम या उसके प्रोफेशन का नाम या उसकी बॉडी का नाम बदनाम हो। यानी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसको देखकर लोग कहें कि ये होते हैं अकाउंटेंट्स, बल्कि वो हर वो काम करेगा जिसको देखकर लोग कहें कि ये होते हैं अकाउंटेंट्स। There should be a difference। देखिए, आप एक बहुत ऑडिटर जब आप बनने जा रहे हैं, आप एक बहुत सेंसिटिव काम करने जा रहे हैं। मैं हमेशा अपनी बात को इस तरह से समझाता हूं और मैं इसी बात पर अपने सेशन को एंड भी करूंगा कि देखिए, एक डॉक्टर से अगर कोई गलत काम हो जाता है ना, तो एक मरीज की जान जाया हो सकती है। एक जज से कोई गलत फैसला हो जाता है ना कोर्ट में, तो दो पार्टीज के राइट्स में मसला आ सकता है। एक इंजीनियर से अगर कोई गलत काम हो जाता है ना, तो चंद 100
चंद हजार लोगों की जानें दाव पर लग सकती हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एक पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट या एक ऑडिटर से अगर कोई गलत काम हो जाता है, वो कोई गलत ओपिनियन दे देता है, तो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स अफेक्ट होते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर वर्क, दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ योर रोल. तो आपने इंडिपेंडेंट रहना है, आपने एथिकली अपने आप को बाउंड रखना है, ताकि आप इंडिपेंडेंस के ऐसे मनसब पर फाइज हों कि लोग आपके काम पर यकीन भी कर सकें और आपके ओपिनियन पर बिलीव कर सकें और उसके मुताबिक अपने डिसीजन दे सकें. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे एज फार एज द सेशन इज कंसर्न. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. मेरा सेल नंबर, आई एम ऑल्सो देयर ऑन व्हाट्सएप. मेरा ईमेल, आप मुझे ईमेल करके क्वेरीज पूछ सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक प्रोफाइल आपके सामने मौजूद है. तो सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं. बाकी अगर आप कोई सवालात आपके रह गए हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, सो वी हैव रफली अराउंड 15 मिनट्स, आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं. सो यस, अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन. वन बाय वन प्लीज. हम नॉर्म्स को फॉलो करेंगे. रेज योर हैंड, आप अपना हाथ रेज कीजिए. जब मैं आपका नाम कॉल आउट करूंगा तो आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा और अनम्यूट कीजिएगा और फिर मुझसे सवाल पूछिएगा. ठीक है, आप सबके पास इस वक्त इख्तियार मौजूद है अपने आप को अनम्यूट करने का. बट रेज योर हैंड, let me call out your name and then you can unmute yourself and ask the question. So starting with Jawad Sheikh once again. Jawad has another question maybe. हाँ, ये प्रोफेशनल बिहेवियर की मज़ीद एग्जांपल्स जो है ना वो दीजिएगा. ये पाकिस्तान में हमारे को इसकी बहुत ज़रूरत भी है, तो इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स जो है ना एग्जांपल के साथ बताइएगा कि प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो क्या होता है, और कोड ऑफ एथिक्स जो है जो आईफैक का कोड ऑफ एथिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिएगा. ठीक है, ओके जवाद. कोड ऑफ एथिक्स जो आईफैक का है, मैं उसी कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा था. और ये उसी आईफैक के कोड ऑफ एथिक्स में ये 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए, जो कि हमारे पास इस वक्त हमें एक इंट्रोडक्शन देना था, तो एक डिटेल सेशन कोड ऑफ एथिक्स पे दायरा नहीं हो सकता. उसमें आईफैक की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हमने जितनी बात करी है वो आईफैक से रिलेटेड ही बात करी है. जहाँ तक सवाल है प्रोफेशनल बिहेवियर का, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह लोगों से आप बात करते हैं, किस तरह आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यानी आपकी जो पर्सनालिटी है ओवरऑल, वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर के उसको एग्जाम्पल बनना है, ताकि लोग आपकी मिसालें दें और लोग आपसे सीखें, ना कि आपके ऊपर कोई टॉन्ट करें. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. यस, रमीज राजा, यू हैव अनदर क्वेश्चन. या हैव अ क्वेश्चन. मुझे थोड़ी सी एडवाइस आपसे चाहिए थी इस हवाले से कि जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक अगर हम इंडस की बात करें या सैलानी की बात करें, दे पुट ऑन देयर बॉक्सेस टू सम स्टोर्स और शॉप्स ना. तो अब Yes. जब वो ओपन होते हैं, क्योंकि दे आर कैश एडम एंड कैश इज ऑलवेज रिस्की, वी ऑल नो. तो इसमें कैश की सिक्योरिटी के हवाले से क्या रिस्क असेस किए जाएंगे, और उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, और जब उनका ऑडिट किया जाएगा तो क्या प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, ये 3 चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज. एक्चुअली रमीज, यस, योर क्वेश्चन इज अ वेरी गुड वन. ये पूरा एक स्पेशलाइज्ड ऑडिट होता है. जब आप इंशाल्लाह ऑडिट का एज सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज. ओके, तो ओके, तो जब आप इंशाल्लाह ऑडिट का एज सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो एक स्पेशलाइज्ड ऑडिट है जिसको हम कहते हैं ऑडिट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं. फंडिंग के रिस्क होते हैं, डोनेशंस के रिस्क होते हैं. वो डोनेशंस कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, जितना कैश कलेक्ट हो रहा है वो दायरे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, बीच में से एम्बेजल तो नहीं हो रहा. तो उसके स्पेशलाइज्ड ऑडिट प्रोसीजर है, जो कि मैं यहाँ पर ऑब्वियसली आपको इस वक्त नहीं बता सकता. बट इफ यू गेट connect with me after the session, तो I'll send you some material जो आपको इसके बारे में पूरी गाइडेंस देगा. ठीक है. Yes, Bilal Atari, your question. You may unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sir, today we learned many things from you, mashallah, as you were teaching us. You? Sir, alhamdulillah. So many people, we are many Islami brothers, maybe 20 or 25. We belong from Dawat Islami. We are doing audit internally, not externally. Internally, we are doing audit. Okay. So, alhamdulillah, today I learned many things from you. Okay, we can, you can request your body so you can have a specialized session on internal audit as well. Thank you for your comments, Bilal. Do you have a question? Sir, I have a question. Yes, proceed, please. Okay, I think Bilal has somehow left the meeting.
Sir, we Okay, are yes, beginner. sir. How we will learn the how we will learn about audit. We are beginner now. It is my Yes, one. you can It is my first class. कंप्लीट करो. ओके, ठीक है. तो आई थिंक आपके लिए पहली पहली वो थी ऑडिट की, तो बहुत सारी चीजें आपके सर पे से भी गई होंगी, आई अंडरस्टैंड. बट ये है कि यू कैन जॉइन सम ऑनलाइन कोर्सेज. अब आजकल तो इस वक्त ऑनलाइन का दौर है और आप अपनी जगह पर बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं. सो जॉइन सम कोर्सेज लाइक दैट मे बी विच कैन बेनिफिट यू, or maybe again you can contact PIFA or any other organization where you belong to. They may have they may go for conducting special courses for you, or internal audit maybe. ठीक है. Okay, Redmi. Thank Who is this Redmi? You have a अस्सलाम question? वालेकुम. Yes, वालेकुम सलाम. हाँ, अच्छा सर, मेरा नाम अली है. मेरा सवाल ये था कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करती है, कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे इंटरनल ऑडिट जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज की वजह से होता है, तो उस सूरत में ऑडिटर कितना इंडिपेंडेंट होगा? नहीं, देखो अगेन असल में हम थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे. मैं थोड़ा और उसको खुल के आपको बता देता हूँ. देखें, कुछ कंपनीज पर इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट बाय लॉ है, और जब लॉ कहते हैं आप इंटरनल ऑडिट आपने कराना है तो आपने कराना ही कराना है. अच्छा, फिर उसमें ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इंटरनल ऑडिटर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, या वो पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट होगा, या वो एक बॉडी है, यूएस की बॉडी है CIA, उसी मतलब सर्टिफिकेशन इंटरनल ऑडिट, वो उसका आदमी होगा. कुछ भी आप कर लें, लेकिन इंटरनल ऑडिटर आखिर में है मैनेजमेंट का आदमी, है मैनेजमेंट का एम्प्लॉय. वो काम मैनेजमेंट के मुताबिक करेगा, वो मैनेजमेंट की आंखों में आके डाल के बात नहीं कर सकता. तो इसलिए वो कितना भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश जरूर करेगा, वो कितना भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करे, वो उतना इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर है. क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर पे किसी किस्म का मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं है, वो मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है. वो अपनी मर्जी से सही और गलत को देखते हुए काम करेंगे और फैसला करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इस बात को मैं बात आपकी उसमें ऐड करना चाहूंगा. Yes, Jawad. With your permission, I am working in a internal audit in a government entity. तो इसमें यहाँ पे मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग नहीं होती ऑडिटर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ना ऑडिट कमेटी को रिपोर्टिंग होती है. तो वो जो है ना इस तरह से इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन करते हैं. उनकी रिपोर्टिंग जो है वो BOG को होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, मैनेजमेंट को नहीं होती. तो वो इस तरह से यहाँ पे जो है अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो मेंटेन करते हैं, और वो मैनेजमेंट को जो है मतलब उस तरह से जो है ना विद ड्यू प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस जो है ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंस, और तो ये चीज तरह से मेंटेन करते हैं. सिर्फ देखें बताने. थैंक यू सो मच जवाद फॉर गिविंग दिस इनपुट. देखिए मैं बार वर्ड मैं मुखातिब हूँ, मेरे ओरिजिनल जिसने सवाल पूछा था रेडमी, यस आई डोंट नो योर नेम. देखें, मैं जब बार मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैनेजमेंट की 3 लेयर्स है. एक आपकी बिल्कुल हायर मैनेजमेंट होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर आपकी एक टैक्टिकल मैनेजमेंट है जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर आपकी वो मैनेजमेंट है जो बिल्कुल लोअर लेवल की मैनेजमेंट है. तो व्हेन आई से मैनेजमेंट एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, सो दैट मींस इंटरनल ऑडिट की कोशिश ये की जाती है. कोशिश क्या की जाती है, इनफैक्ट इस सेटअप ऐसा होता है कि वो बिल्कुल हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, और जिन लोगों को आमतौर पे रिपोर्ट करता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते. तो इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को भी कायम रखने की पूरी कोशिश की जाती है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि उसकी इंडिपेंडेंस कभी भी उतनी नहीं होगी जितनी एक्सटर्नल ऑडिटर की होगी. हरगिज मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए. इंटरनल ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो भी ऑडिटर है, बट इस इंडिपेंडेंस कैन नॉट मैच द इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर बिकॉज समहाउ moreover nevertheless he is dependent upon management, be it lower management or higher management. ठीक है. तो सिर्फ इस बात को दिमाग में रखें, और आप अपने दिमाग पे ये भी बात रखें कि yes, internal auditor is also independent, less independent, but he is independent. He tries to be independent as far as he can. ठीक है. Yes, Ramiz, you have another question. यस सर, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी और आप ब्रीफ अगर यूँ कर दें सवाल से. सर ऑडिट हमने ये सुना है कि ऑडिट वाला बंदा वो होता है जो हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करे, राइट?
तो अब हर मतलब ये हर चीज़ में क्रिटिकली ऑब्जर्व करें उसको। तो सर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में और अपनी ये इन्हेंसमेंट, अपनी ऑडिट अप्रोच या ऑडिट स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए सर डे टू डे ऐसे क्या स्टेप्स करें जिससे हमारी ये स्किल डेवलप हो? सर ये भी एक स्किल है, ज़ाहिर है ऑडिट में आपको कुछ एक लाइन नहीं होती कि आपको ये सी लाइन पे चलना है, बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने हिसाब से ऑडिट इश्यूज निकालने पड़ते हैं। तो सर किस तरह इस स्किल को एनहांस किया जाए, इस पे थोड़ी सी अगर आप कमेंट कर दें। Okay, Ramesh, glad to see your enthusiasm for being a good learner. देखो ये चीज आती है with practice with experience. किताब में आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन आपको तजर्बा उसी वक्त आता है जब आप बहुत सारे ऑडिट्स करते हैं, जब आप बहुत सारे क्लाइंट्स पर जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को आप देखते हैं। अगर तुम स्किल सेट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर ये इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक, हम कहते हैं ना उर्दू में कहावत है, बाल की खाल निकालना, तुम्हें उस लाइन पे सोचना पड़ेगा, हर चीज के हर पहलू को देखना पड़ेगा, हर एंगल से देखना पड़ेगा, और बिल्कुल अपने दिमाग को न्यूट्रल रखते हुए सोचना होगा, किसी की बातों में नहीं आना होगा, किसी का इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट नहीं करना होगा, और ग्राउंड पे रहते हुए परसेप्शन बनाए हुए किसी के बारे में कोई राय कायम किए बगैर आपने सोचना होगा। बट कुछ भी हो रमीज, दिस विल कम विद प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह जब तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और आगे जाओगे, so you will learn a lot from it. बाकी you can have my contact number and we can establish contact with each other and I can help you out in so many ways. Obviously यहाँ पे हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो हम बहुत डिटेल में बात जी सर, एक्चुअली किसी ने रेज नहीं किया तो इसलिए मैं बीच में लो, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त डेस्टिनेशन दी है सर। एक फेवर और कर दें कि ये हमें ईमेल पे आपकी प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी, और सेकंड ये पिफा ऑफिस के थ्रू जो भी आज के पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये प्रेजेंटेशन का पीडीएफ इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है। और सर सेकंड, इस तरह के आपके जो भी सेशंस हो, आपका कोई अपना पर्सनली पेज हो तो ताकि हम उससे भी लिंक रहें और हमें डे टू डे उसकी अपडेट मिलती रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सेकंडली सर जो ऑडिट की हवाले से जो एक जवाद भाई ने बात की गालिबन कि बीओडीज होते हैं, सर आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि बीओडीज तो होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप एक जनरली डिस्कशन कर रहे हैं तो हर जगह ये बीओडी वाला कल्चर होता भी नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनल ऑडिट डिपेंडेंट पे नहीं रहता। तो ये बिल्कुल आपने न्यूट्रल बात की है, तो ये सबके लिए है एक्चुअली ना, तो बहुत जबरदस्त आपने की है। ओके, थैंक यू रमीज, थैंक यू सो मच। Yes, anything else, Zahid साहब? I would like to very much grateful. ये जो प्रेजेंटेशन है ये पिफा के YouTube चैनल के ऊपर भी अपलोड हो जाएंगी, तो जो लोग बाद में देखना चाहते हैं वो वहां से भी जो है वो इसको देख सकते हैं। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, आज की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं चैट में शेयर कर दूंगा पार्टिसिपेंट्स के साथ। ग्रेट। चलिए, okay, so if we have any question, more than welcome, otherwise हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। I would like to add something, Fahad. Yes, Jawad. Yes. Achha, I'm very much grateful to PIFA for arranging such a professional seminar today and being learning. It was very much grateful for me and everybody else who has participated, and many who will be watching this seminar online on Facebook, YouTube, and whatsoever the medium would be. And I would like to request the management if they can further do a workshop or webinar on risk assessment and internal audit. I will be very much grateful. Risk assessment and internal audit. These are very important areas. Yes, you're right. Noted, Jawad bhai. Okay, thank you Jawad sir for inputting once again. Yes, SMA, do you have a question? Okay, Zahid sir, over to you. I think there are no further questions. Yes, we have a question. सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था इस हवाले से कि ये जो हम ऑडिट वगैरह करवाते हैं सर, प्रैक्टिकली जब हम ऑडिट करवाते हैं तो वहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि जो ऑडिट के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे होते, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग जो है वो एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जो एक ऑडिट का पर्पस होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता, सही है ना, क्योंकि उसमें फिर भी बहुत सारी मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, जो उसका ओपिनियन होता है वो ट्रू नहीं होता, सही है ना। तो लोग बेसिकली जो ऑडिट करवा रहे होते हैं उसका मकसद सिर्फ ये कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है बस, लेकिन जो एक पर्पस ये भी है कि उसमें अगर किसी किस्म की मिस स्टेटमेंट्स हैं या जो उसका ओपिनियन है वो ट्रू नहीं है तो उसको भी तो फाइंड आउट करना चाहिए ना। आज से काफ़ी साल पहले मैं अपने वालिद साहब की कंपनी में देखता था कि ऑडिटर्स आते थे बाकायदा और पूरे महीने वो कंप्लीट ऑडिट करते थे, कि चीज़ चेक करते थे। आजकल तो ये कि 3 महीने 6 महीने के बाद ऑडिटर्स आ जाते हैं और वो बहुत सारी इसकी रिपोर्ट चेक कर होते हैं जिसमें मुझे पता होता है ये गलत बनी हुई है, लेकिन वो अपना चेक करके चले जाते हैं और अपनी फीस वगैरह ले लेते हैं। तो जो बेसिक पर्पस है ऑडिट का वो तो पूरा नहीं हो रहा। Okay, चले let me clarify this very well. A very important issue raised by one of our participants. देखिए ये वर्कशॉप कराने का आपका पर्पस ही है ना, because we can only train people, right? Auditor
जजमेंट की बेस पे काम करता है। ऑडिटर की पर्सनालिटी, उसकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट बड़ा मैटर करती है। आप रोबोट्स नहीं है कि आपके अंदर प्रोग्रामिंग कर दीजिए और आप वैसे ही काम करें। ऑडिट के एनवायरनमेंट्स आप ही नहीं चलाने आगे चल के इंशाल्लाह। और इन वर्कशॉप्स का, इन ट्रेनिंग्स का, इन सेमिनार्स का पर्पस ये होता है कि अगर आपका ज़मीर जाग गया और आपने ऑडिट के प्रिंसिपल अच्छी तरह फॉलो कर लिए तो यू आर गोइंग टू मेक दैट डिफरेंस। लेकिन जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं थोड़ा सा वहां से आपसे डिसएग्री करूंगा। मे बी यू आर वेरी सेलेक्टिव इन दैट। बड़ी फर्म्स हैं हमारे यहाँ, बड़े ऑडिट्स होते हैं, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट्स होते हैं, वहां पर थिंग्स आर वेरी स्ट्रीमलाइन। यस, I understand it's not the case with every audit firm, it's not the case with every organization, but things are improving day by day and you are going to be the change agent. So be, ready for these changes, learn a lot yourself and be the change yourself rather than expecting the change from the people around us. ठीक है? इसमें मैं एक Okay, चीज जी। थोड़ी सी और ऐड कर Yes, दूं। yes. बेसिकली एक Yes. थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन ऑडिटर के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एक रिपोर्टिंग Yes. रोल जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम एक कॉमन यूजर की बात करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन जो ऑडिटर से रखी जाती है वो फ्रॉड डिटेक्शन की रखी जाती है, जो कि प्राइमरीली वो ऑडिटर का काम नहीं है। रिस्क बेस्ड ऑडिट में वो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए अपॉइंट नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट और बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं। तो उस डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करना जो है वो जरूरी है। बाकी आपने बताया कि वो पर्सन टू पर्सन भी चीजें वेरी करती हैं। बिल्कुल। Okay, so over to you, Zahid sir. I think it's the end. अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फात भाई फॉर वंडरफुल सेशन। Okay, thank you. और सवाल ये है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन ये ऑडिट प्रोफेशन को किस तरह इम्पैक्ट करेगी? It's going to really transform everything. अगर मैं अपने दिल की बात आपसे करूं तो down the line 10 years I see no auditors because artificial intelligence is becoming so strong that it will replace the auditors very soon and in a very well defined way. फिर ये गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि आज के ऑडिटर को ये टेक्नोलॉजी इस वक्त साथ साथ सीखनी चाहिए कि कल को उस टेक्नोलॉजी को चलाने की भी लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, और वो जो उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ होगा तो वो रहेगा मार्केट में। The others would be outdated because machines these days are good auditors and humans actually. So I think yes, very well pointed out. We all must go with the technology ताकि किसी भी point of time पे आके हम या हमारी skills obsolete ना हो। अस्सलाम वालेकुम। Okay, we have another question. Yes, Numan. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने इंटरनल और एक्सटर्नल में इंडिपेंडेंसी की बात की, तो क्या एक्सटर्नल जो फर्म्स होती हैं, ऑडिट फर्म्स होती हैं, वो इतनी फुली तौर पे इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपना ऑडिट सही से करते हैं? यानी कि जिन कंपनीज़ का उनको ऑर्डर मिलता है ऑडिट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बाज़ औक़ात, तो वो उन कंपनी से कोई डील कर लें या इस तरह से कोई इंडिपेंडेंसी उनकी जो है वो अनक्लियर हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? ओके देखिए, दुनिया में आज तक, अभी तैयब ने कहा मशीन्स आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो गई है, लेकिन अब तक और मेरे ख्याल से तक क़यामत दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं आएगी जिसके सामने इंसान को खड़ा किया जाए और वो मशीन बता दे कि ये आदमी कितना ऑनेस्ट है, कितना सच्चा है। ये अल्लाह ताला ही जानता है और ये हमारे दिलों का हाल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी के साथ मिली भगत कर ले, सेटिंग कर ले, लेन देन कर ले, लेकिन हमारे कोर्सेज में, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, सीए पाकिस्तान हो, वो एसीसी हो, वो सीएमए पाकिस्तान हो, वो पिफा हो, हमारी जितनी भी बॉडीज हैं, उनके जितने भी करिकुलम्स हैं, वहाँ पे अब बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। और ये एथिक्स पढ़ाने का पर्पस ही होता है बिकॉज वी नो दैट यू नीड टू बी एम्पावर्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैंने आपसे कहा ना कि वक्त तेजी के साथ बदल रहा है, पुराने ऑडिटर्स में और आज के ऑडिटर्स में बड़ा फर्क है, बिकॉज आज के ऑडिटर्स काफी हद तक अपनी एथिकल बाउंड्रीज को और अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर तरीके से समझते हैं, एंड देयर आल्सो सब्जेक्ट टू ऑडिट, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। तो थिंग्स आर इंप्रूविंग डे बाय डे। ये रिस्क हमेशा रहेगा, एक ऑडिटर किसी के साथ भी मिलकर कोई काम कर सकता है, बट मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक ऑडिटर को अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने वही आपको मिसाल दी ना, एक डॉक्टर से गलती हो जाएगी ना तो एक मरीज चारा चल बसेगा, एक जज कोई गलत फैसला दे देगा, दो पार्टीज के राइट्स में मसला आ सकता है, एक इंजीनियर ने कोई गलत बिल्डिंग बना दी ना, खुदा ना खास्ता चंद 100,000 अफराद की जानें दाव पर लग सकती हैं। लेकिन अगर आपने गलत ओपिनियन दे दिया तो आपके ओपिनियन के ऊपर
लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स रिलाय कर रहे हैं, आप एक ऐसा गुनाह कर रहे हैं कि जो दुनिया में तो मुझे पता नहीं, लेकिन आखिरत में आपकी पकड़ जरूर होगी। तो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप फील करने लग जाएंगे और आप ईमानदार खुद हो जाएंगे, तो फिर ये चेंज खुद ब खुद आएगा। एंड इट्स अ ग्रेजुअल चेंज एंड वी ऑल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ओके, आई थिंक जाहिद साहब टाइम भी आपका हो गया पूरा, सो ओवर टू यू, आप सेशन क्लोज करें। सर एक सवाल पूछना था मुझे भी। और कोई सवाल? सर मुझे एक सवाल पूछना था कि एक Okay. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जिसके हिसाब से ये होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसका काम जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए यूजफुल होता है, तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो तो बेसिकली मैनेजमेंट का आदमी होता है, वो तो उसके हिसाब से काम कर रहा होता है, तो उसका काम किस तरह से रिलायबल हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए? बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर एक प्रॉपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिखा गया है, ISO 610, जिसकी बात करता है। देखिए एक टर्म है, अभी जवाब साहब ने भी फरमाया ना कि इंटरनल ऑडिटर काम तो कर रहा है, ऑडिटर की तरह काम कर रहा है, और बहुत सारे केसेस में वो इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और उसको इंटरनल ऑडिटर का कोई पार्ट ऑफ द वर्क, कोई ऐसा काम बड़ा अच्छा लगता है और वो लगता है कि यार ये काम ऑलरेडी हुआ हुआ है और अच्छी तरह हुआ हुआ है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम परफॉर्मिंग दिस वर्क, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर अगर चाहे, वो मुनासिब समझे, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, तो वो इंटरनल ऑडिटर के काम का कुछ हिस्सा यूज कर सकता है, लेकिन उसको यूज करने की कुछ प्री कंडीशंस हैं जो कि प्रॉपर डिटेल स्टैंडर्ड है। कभी वक्त मिला तो आपको वो भी बताएंगे जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Okay, Zahid साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सेशन था आपका, जिसमें हमने बेसिक रोल समझा ऑडिट का, ऑडिटर का बेसिक रोल समझा, कोड ऑफ एथिक्स का भी हमने एक उसके प्रिंसिपल्स का भी एक अहाता कर लिया, लोगों के कंफ्यूजन माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरह से दूर कर दी, स्पेशली इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप को लेके। ठीक है, फिर कुछ दोस्तों के जो रिजर्वेशंस हैं ऑडिटर की परफॉर्मेंस या उसके ऑनेस्ट होने के रोल पे, स्पेशली जो लास्ट क्वेश्चन था कि अगर ऑडिटर किसी से मिल जाए तो डेफिनेटली उनके ऑडिटर्स के ऊपर रेगुलेटर्स मौजूद हैं। पहले सिर्फ ICAP था, QCR की फॉर्म में ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, आपको पता है उसमें सारे शामिल हैं, स्टेट बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ICAP है, SECT है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, वो खुद सब्जेक्ट टू ऑडिट है, तो एक प्रॉपर चेक उसके ऊपर है। अगेन एट द एंड जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, इवन अगर आप पार्टनर परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो टीम परफॉर्म कर रही है वो किस तरह पर्सनली एक्ट कर रही है, तो उन चीजों के लिए कोड ऑफ एथिक्स है, और एथिक्स डेफिनेटली वन स्टेप डाउन होता है लॉ से, तो इंसान ने खुद उसको अडॉप्ट करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हम पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। और इसी तरह के जब इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं वो आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी करते हैं, साथ आपको अपना रोल भी समझाते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वंस अगेन, आई एम ऑनर्ड। 5 कमेटी की जानिब से आपका भी और पार्टिसिपेशन भी आज माशाल्लाह हम कैप को पहुंचे हैं, अपनी 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे जूम के ऊपर। नहीं, आपकी अगर लिमिट नहीं होती तो इट वुड हैव एक्सीडेड मच मोर देन दैट। डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज को भी काउंट फॉर करेंगे कि हम इस कैप को भी वो ध्यान में रखें कि माशाल्लाह पार्टिसिपेंट जो है ज्यादा आते हैं, और हम करेंगे कोशिश इंशाल्लाह कि आपके साथ ऑडिट की स्पेसिफिक सेशंस भी रखें जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड। आज लोग इंटरनल ऑडिट के काम के हवाले से चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, कोड ऑफ एथिक्स को फर्दर डिस्कस करना चाह रहे, तो सर बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ पिफा। थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं असल में ये फर्स्ट टाइम जो ये मतलब आप लोगों का सेशन था ये अटेंड कर रहा था, इससे पहले मैंने कभी अटेंड नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैंने कहा चले मैं भी देखता हूँ अटेंड करके कि कैसा सेशन होता है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके जो भी सेशन होंगे वो मैं अटेंड किया करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि पास में जितने भी सेशन हमारे अभी ऑनलाइन हुए हैं तो वो पिफा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है, प्लस यूट्यूब पे भी वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं उसको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा होगा कि आप जो पिफा की फ्रेटर्निटी है वो उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें उस चैनल को, ठीक है, ताकि ये जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं ये बाकी जो हमारे दोस्त अहबाब हैं प्रोफेशन से रिलेटेड या इवन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके काम भी आ सके और मैक्सिमम ये चीज जो है वो प्रमोट हो। अच्छा, ये नोमान का हैंड कंटिन्यूअसली रेज हो रहा है। नोमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर हो गया। तैयब भाई, आप भी नेक्स्ट टाइम हो सके तो अपने कुछ मलफूजात अता फरमाएगा, आपका भी काफी
इन हैंड एक्सपीरियंस है माशाल्लाह ऑडिट का, तो आपके जी भी जी वर्ड्स हम सुनना चाहेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में। जरूर इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह तैयब साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें टाइम दें के लिए। इंशाल्लाह। ये क्या स्लाइड्स अवेलेबल होंगे हमें? ये एक तो पूरी वो अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर, और हम इसकी पीडीएफ भी जो है वो शेयर कर देंगे, पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। पीडीएफ Alright, की it was a great कहाँ session. पर शेयर होंगी? Thanks a lot. Thanks a lot, Pifa. We will waiting for another session like this. थैंक यू अहमद जी। Thank you. हमारी तरफ से कितने लोगों ने अटेंड किया पता नहीं, नहीं आ रहा होता नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं, पता नहीं। आपके वो